دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذی لا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود۔ وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرضه۔ اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں سارے حضرات مل کر۔ اجازت ہے کہ ڈیوٹی شروع کی جائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنی تمام تر توجہ ذکر کی طرف آپ نے رکھنی ہے۔ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرے بعد بھی بھائی پڑھیں گے، تو ان کی ڈیوٹی کے وقت بھی آپ نے اس طرف دھیان نہیں دینا، آپ نے ذکر کی طرف متوجہ رہنا ہے، کیونکہ یہ ذکر ہے ناطق قرآن کا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو حکم ہے کہ اسے خاموشی اور غور سے سنا جائے اور اس میں تدبر بھی کیا جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے تدبر بھی کرنا ہے، اپنے تمام خیالات نکال کے اپنے خیالوں میں حسین ابن علی کو رکھنا ہے، جس نے غم شبیر دل میں بسا رکھا ہے، جس نے غم شبیر دل میں بسا رکھا ہے، اس نے خوشیوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ ذکر کو غور سے سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس نے غم شبیر دل میں بسا رکھا ہے، اس نے خوشیوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے، گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، مولا یہ تیرا نقش قدم ہے یا دیا رکھا ہے، مولا یہ تیرا نقش قدم ہے یا دیا رکھا ہے، مولا یہ تیرا نقش قدم ہے یا دیا رکھا ہے۔ حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا، حضرت نوح اسے دیتے ہیں
जीने की दुआ जिसके घर में कफने करबो बला रखा है। हजरत नूह देते हैं उसे जीने की दुआ जिसके घर में कफने करबो बला रखा है। आसमानों को बिछा दे मेरे घर में या रब, आसमानों को बिछा दे मेरे घर में या रब, शाहे महराज की बेटी को बुला रखा है। शाहे महराज की बेटी को, शाहे महराज की बेटी को, शाहे महराज की बेटी को बुला रखा है। मौजज़ा इसको कहें या के हुनर कासिम का, मौजज़ा इसको कहें या के हुनर कासिम का। मौत कड़वी है मगर शहद बना रखा है। जब कासिम चले ना मैदान की तरफ तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है कासिम तू मौत को कैसे पाता है? तो कासिम ने कहा मैं तो मौत को शहद से भी ज्यादा शीरी जानता हूं। मौजज़ा इसको कहें या के हुनर कासिम का। मौत कड़वी है, मौत कड़वी है मगर शहद बना रखा है। अभी बाकी है अलमदार के हिस्से का जिहाद, अभी बाकी है अलमदार के हिस्से का जिहाद, इसलिए परचम अब्बास खुला रखा है। बस यही वो मंजिल थी जहां तक मैं आपको लाना चाह रहा था कि अभी बाकी है अलमदार के हिस्से का जिहाद, अभी बाकी है अलमदार के हिस्से का जिहाद, इसलिए परचम अब्बास खुला रखा है। देखिए सियासत का दौर है, बहुत सारी सियासी पार्टियां इस वक्त अरूज पे हैं। हत्ता कि मैं तो कई के नाम भी नहीं जानता, लेकिन जो मशहूर है पीटीआई है, नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक लब्बैक वगैरह वगैरह। अगर आप बात को जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक नतीजा निकालूंगा इसी बात से कि घर पे लगा हो पीटीआई का परचम, हुकूमत हो नून लीग वालों की, आप गुजरे आपने देखा कि पीटीआई का परचम लगा हुआ है लेकिन हुकूमत तो है नून लीग वालों की, फौरन ही आपके ख्यालों में ये आ गया कि इस घर में जितने भी अफराद हैं ये नून लीग वालों की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। अगरचे अभी हुकूमत पीटीआई की नहीं है मगर ये चाहते हैं कि हुकूमत पीटीआई की हो। चाहते क्या है? हुकूमत पीटीआई की हो। इसी तरह अगर हुकूमत पीटीआई की हो और परचम लगा हो नून लीग वालों का, आप गुजरे आपने देखा कि हुकूमत तो पीटीआई की मगर परचम तो लगा हुआ है नून लीग वालों का, फौरन आपके ज़हन में ये ख्याल आएगा कि इस घर में जितने भी अफराद ये तस्लीम नहीं करते पीटीआई वालों को, ये चाहते हैं नून लीग वालों की हुकूमत आए। फिर ये फैसला मान लो जिस घर पे अब्बास का परचम लगा हो वो ये चाहते हैं कि अब्बास की हुकूमत हो, वो किसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। नाराए हैदरी फैसला मान लो ना कि जिस का परचम लगा हो, जिस पार्टी का परचम लगा हो, फौरन जहन में ये ख्याल आता है कि फलां पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी पार्टी हो उसका कोई ना कोई लीडर तो जरूर होता है। पीटीआई का भी लीडर, नून लीग वालों का भी लीडर, पीपल पार्टी वालों का भी लीडर, लेकिन जब लीडर ना हो तो जमात खत्म, वो पार्टी ही खत्म, सारा कुछ खत्म और उसका परचम भी खत्म। जब लीडर ही नहीं रहेगा, जब तक लीडर मौजूद हो तब तक परचम बाकी रहता है। ये अब्बास का अलम बता रहा है कि कोई ना कोई लीडर तो मौजूद है ना, कोई ना कोई लीडर मौजूद है जिसकी वजह से ये परचम अभी तक बाकी है। सलवात पढ़े सारे हजरात में। जिस
आयत की मैंने तिलावत की कि वमन कुतिला मजलूमन, जो भी मजलूम बन के कत्ल कर दिया जाए, जिस पर जुल्म हो और वो कत्ल कर दिया जाए, वमन कुतिला मजलूमन फकत जअलना लिवलियही सुल्ताना, हम उसके वली को सुल्तान बना देंगे। कुरान की है, अल्लाह फरमा रहा है कि जो भी मजलूम बन के कत्ल कर दिया जाए, जिस पर जुल्म हो और वो कत्ल कर दिया जाए, हम उसके वली को क्या बना देते हैं? सुल्तान बना देते हैं। फकत जअलना लिवलियही सुल्ताना वला युसरिफ फिल कत्ल, और वो कत्ल में तसर्रुफ नहीं करेगा, बदला लेने में तसर्रुफ नहीं करेगा। इन्नहु काना मनसूरा, और बेशक उसकी मदद की जाएगी। सलवात पढ़ें एक मिनट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। क्योंकि कुरान सामित है, नातिक कुरान ने इसकी तफसीर बताई। इमाम मोहम्मद बाकिर उल-उलूम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम मोहम्मद बाकिर उल-उलूम फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, जो भी मजलूम बन के कत्ल कर दिया जाए, इस मजलूम से मुराद इमाम हुसैन है, और जिस वली को सुल्तान बनाया जाएगा वो हमारे कायम आले मोहम्मद, वो हमारे कायम आले मोहम्मद हैं। वला युसरिफ फिल कत्ल, और वो कत्ल में तसर्रुफ नहीं करेगा, कत्ल करने में ज्यादती नहीं करेगा। इमाम मोहम्मद बाकिर उल-उलूम ने फरमाया, अगर पूरी कायनात मिलके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देती, हमारा कायम आले मोहम्मद जब आएगा तो वो पूरी कायनात को इसके बदले में कत्ल करेगा, और ये तसर्रुफ और ज्यादती नहीं होगी। इन्नहु काना मंसूरा, बेशक उसकी मदद की जाएगी। सलवात पढ़े सारे हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। 3 शौबान मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कायनात में आए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे इस कायनात में आए, कायनात के रसूल अपनी बेटी के घर में आए। तवज्जो है ना मेरी तरफ? कायनात के रसूल अपनी बेटी के घर में आए। बीबी उम्मे सलमा घर में तशरीफ फरमा थी। कायनात के रसूल ने फरमाया, उम्मे सलमा जाओ, जाके मेरे बेटे हुसैन को लेके आओ, जाओ और जाके मेरे बेटे हुसैन को लेके आओ। बीबी उम्मे सलमा ने कहा कि अभी तो मौलूद को गुस्ल ही नहीं दिया गया, उन्हें तो गुस्ल दे के पाक ही नहीं किया गया। जैसे ही ये बात कही ना कि अभी उसे पाक ही नहीं किया गया, गजबनाक आंखों से कायनात के रसूल ने देखा और कहा, आए उम्मे सलमा, अब तू उसे गुस्ल दे के पाक करेगी, अब तू उसे गुस्ल दे के पाक करेगी। जैसे ही कायनात के रसूल ने कहा कि अब तू उसे गुस्ल दे के पाक करेगी, बीबी उम्मे सलमा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे लेके आई। कायनात के रसूल ने उठाया और यूं देखा और प्यार किया, अभी गुस्ल दे के पाक नहीं किया गया। अब चंद ही ये दिन गुजरे हैं, एक मौलवी साहब ने कहा है कि जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद किए गए तो नौज़ बिल्लाह, क्योंकि वो खून की हालत में थे, तो खून क्योंकि नजस होता है, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज ना पढ़ी, यूं ही सजदे की हालत बना दी, नौज़ बिल्लाह। अभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और कायनात के रसूल ने बीबी उम्मे सलमा को गजबनाक आंखों से देखा। आए मौलवी, जब तू मैदान महशर में जाएगा तो फिर क्या मुंह दिखलाएगा? इंशाअल्लाह तुझे भी कायनात का रसूल गजबनाक होके देखे, तुझे भी कायनात का रसूल गजबनाक होके देखेगा। एक वाकया सुना देता हूं कि कायनात के रसूल की मोहब्बत कितनी थी अपने बेटे हुसैन से।
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कायनात के रसूल की सुन्नत है। अगर हुसैन का हर फेल, अगर रसूल पाक का हर फेल अपनी उम्मत के लिए होता है सुन्नत, तो फिर मोहब्बत हुसैन भी सुन्नत रसूल है। कायनात के रसूल नमाज में तशरीफ फरमाए, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में गए कायनात के रसूल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और पुश्ते रसूल पे सवार हो गए। अब नबी का कोई भी फेल हुक्म खुदाबंदी से खाली नहीं होता। अल्लाह का हुक्म है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी तब तक कलाम नहीं करता, नुतक नहीं करता जब तक कि मैं अल्लाह वही नाजिल न कर दूं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते रसूल पे सवार हैं और इंतजार कर रहे हैं कायनात के रसूल कि अब क्या किया जाए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, आए अल्लाह के रसूल, जब तक हुसैन बैठा है तब तक सजदे को लंबा कर दो। कायनात के रसूल ने सजदा लंबा किया और जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते रसूल से खुद ब खुद नहीं उतरे, कायनात के रसूल ने सजदे को जारी रखा, सजदे को जारी रखा। तो फिर समझ में आ गया, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल पाक की नमाज में आए हैं तो रसूल ने इतना एहतराम किया कि उन्हें कोई तकलीफ न पहुंच जाए। और कायनात के रसूल ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, बेशक हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अब एक और फैसला, मौलवी साहब कहता है, जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो बंदू का ख्याल जहन में ना आए, गैरुल्लाह का ख्याल जहन में ना आए, वरना नमाज बातिल हो जाती है, वरना नमाज बातिल हो जाती है। गैरुल्लाह का ख्याल आने से नमाज बातिल हो जाती है। मैं कहता हूं, अगर दुनिया में करबला न होता, अगर दुनिया में करबला न होता, अगर दुनिया में करबला न होता, गमों का ज़ोफ़ तो होता, सहारा न होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गमों का ज़ोफ़ तो होता, सहारा न होता। वहां ख्याले मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, वहां ख्याले मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, जहां खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता। सलवात पढ़े सारे। कायनात के रसूल ने जो शरीयत बनाई थी वो बहुत ही खूबसूरत शरीयत थी, जिसको यजीद लईन ने तब्दील करने की कोशिश की। और वलीद ने जब कहा ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने में बुला के दरबार में बुलाया और कहा कि ऐ हुसैन, तुझसे यजीद बैत मांगता है। तो हुसैन ने कहा, ऐ वलीद, तुझे नहीं मालूम हम किस खानदान से हैं? हमारा खानदान नबूवत और रिसालत का मरकज है। हमारे घर में फरिश्ते नाजिल होते हैं, हमारी जुबानें अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं बोलती, हमारी जुबानें अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं बोलती। और जिसकी तू कह रहा है ना बैत कर ले, वो फासिक को फाजिर है, वो शराब पीता है, लोगों को बेगुनाह कत्ल करता है, मोहम्मद के किए हुए हलाल को हराम करता है, हराम को हलाल करता है। मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं कर सकता। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, बरबर दुश्मन ते लानत बेशुमार, नारे हैदरी। मुझ जैसा यजीद जैसे की बायत नहीं कर सकता। और कल का सूरज जब नमूदार होएगा तो फिर मालूम हो जाएगा कि बायत का हकदार कौन था। देखिए, कायनात के रसूल ने जो शरीयत बनाई थी यजीद ने बदल दिया। कायनात के रसूल तो शरीयत बना के चले थे
کہ جب جانور کو بھی ذبح کرنا تو اسے پہلے پانی پلا لینا، جانور کو بھی ذبح کرنا تو اسے پہلے پانی پلا لینا، لیکن حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میں آخری وصیتیں پڑھتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کی۔ جب سب شہید ہو گئے نا، اکبر بھی مارا گیا، غازی بھی اتر گیا، مولا امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے، مولا امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات کی، اور مولا امام سجاد علیہ السلام کو کہتے ہیں اے سجاد، میرے بعد جب میرے پیروکاروں کو ملنا تو انہیں یہ بتلا دینا کہ حسین نے کہا تھا جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب بھی کسی غریب کا تذکرہ سننا تو میری غربت کو یاد کر کے رونا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔